Hello students. Today we are going to read the part 2 of The King of the Golden River. So in part 1 we studied that there were three brothers. Yes, Squats, Hans and Gluck, where the two were very wicked and people used to call them black brothers, and the youngest one, that is Gluck, he was very kind, good. Yes, so one day what happened, when the two brothers went out, it was raining heavily and only Gluck was in the house, where one old man knocked the door and he requested Gluck to take him in. Gluck, okay, he took him in, and just then he was hungry, so Gluck gave him some part of his food. But before he could eat, the two brothers came and they were very angry, and they just wanted the old man to go out, and they kicked him out. That old man was none other than the wind, southwest wind. Yes, so he told that that was the last day he'll visit, and then he'll never visit again. And then what happened? The treasure valley was full, dried up, and we're going to study in the second part what happens next. Southwest wind was true to his word. True to his word means he never came back. He did not return to treasure valley after that night. Neither did any other wind. अगर हवा ही नहीं आया तो क्लाउड्स नहीं आएगा, क्लाउड्स नहीं आया तो बारिश नहीं आएगा, बारिश नहीं आएगा तो वो वैली सूख जाएगा. So there was no rain, nothing grew in Treasure Valley anymore. The brothers made no more profits. So once the brothers used to make lot of profits, but now they are making zero money, zero profits. The wicked brothers then began to make money by selling gold. So now they thought of selling gold. इसमें भी उन लोग कुछ गोलमाल करने वाले. They melted in the furnace the gold articles they had. They mixed a lot of copper in it and sold the mix as pure gold. See here, cheating यहाँ पे भी. जो कोई गोल्ड था उनके पास, उन लोग मिक्स करते थे बहुत सारा कॉपर के साथ, और क्या बेचते थे? प्योर गोल्ड ऐसे बेचते थे. Again they made poor Gluck work in a furnace while they spent the money on themselves. वापस इन लोग खुद काम नहीं करते थे, ग्लक से पूरा काम करवा के लेते थे और सब पैसा खुद पे उड़ा देते थे. Soon all the gold in the house was spent. Only one thing was left, a beautiful golden mug that belonged to Gluck. सब गोल्ड के आइटम्स भी अभी ख़त्म हो गए. एक ही एक जो बचा था वो था ग्लक का मग. Gluck's uncle had given it to him when he was a baby. Gluck used to drink both milk and water from it. A strange bearded face was delicately carved on the mug. वो मग में एक अजीब सा, एक छोटा सा bearded आदमी, bearded face, bearded मतलब दाढ़ी वाला मुंह, कार्व किया था. Gluck was very fond of the mug. He did not want to part with it. उसको नहीं पसंद था कि वो उससे दूर हो जाए. But his wicked brothers only laughed at him and threw the mug into the furnace. But वो गरम गरम फर्नेस में इन्होंने फेंक दिया. They asked Gluck to pour the gold when the mug was melted and went out on some wicked enterprise. उन्होंने वापस ग्लक को काम पे लगा दिया. उन्होंने क्या बोला, ये मग जब पिघल जाएगा इसको पूरा गोल्ड को बाहर निकालो और हम चले बाहर. सम विकेड एंटरप्राइज मतलब कुछ वापस कुछ गंदा काम करने. Sadly, Gluck sat down to watch over the mug being melted. और उदास से अपना प्यारा मग को देख रहा है पिघलते हुए. But strangely, after some time, he began to hear a voice singing from the furnace. But strangely, surprisingly क्या हुआ? थोड़ी ही देर में वो फर्नेस से कोई गा रहा है, ऐसे उसको सुनाई दिया. He lifted the lid of the crucible. Crucible means a container. And what did he see? और उसने क्या देखा? The face of his old bearded friend on top of the melted gold. Gold के ऊपर वही ओल्ड बियर्डेड फेस जो उसके मग पे था वो गोल्ड के ऊपर दिख रहा है उसको. कम ग्लक माई बॉय, सेड द वॉइस फ्रॉम द क्रूसिबल. Pour me out, I am too hot.
वो बात भी कर रहा है, वो बियर्डेड फेस का आदमी क्या बोल रहा है, आओ ग्लक, मुझे अभी तुम डाल दो बाहर। ग्लक वॉज टू एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, बट ही टुक होल्ड ऑफ द क्रूसिबल एंड टिल्टेड इट टू पोर द गोल्ड। उसने क्रूसिबल उठाया एंड डालने को टिल्ट किया। इंस्टेड ऑफ गोल्ड अ गोल्डन ड्वार्फ केम आउट ऑफ द पॉट। हिज वॉज द फेस कार्व्ड ऑन ग्लक्स मग। बट जब ग्लक ने पोर किया तो क्या आया, एक गोल्डन ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब जो छोटे छोटे लोग रहते हैं एकदम हाइट में छोटे, ड्वार्फ, वो आया और उसका फेस सेम टू सेम वही था जो ग्लक के मग में था। प्रे सर, सेड ग्लक रादर हेसिडेंटली, वे यू माई मग। ओ आप क्या मेरे मग के हो क्या, एकदम हेसिडेंटली मतलब पूछूं कि नहीं पूछूं वैसे पूछा। आई एम द किंग ऑफ वॉट यू कॉल द गोल्डन रिवर। वो जो आदमी था उसने बोला मैं ही किंग हूँ वो गोल्डन रिवर का जो शाइन करता है। द गोल्डन ड्वार्फ टोल्ड हिम। ही एडेड दैट अनदर स्ट्रॉन्गर किंग हैड टर्न्ड हिम इनटू अ मग बाय मैजिक। ने क्या बोला, ओ मैं मग में कैसे आ गया, एक स्ट्रॉन्ग किंग था उसने कुछ जादू मंतर करके मुझे मग में डाल दिया। ग्लक हैड फ्रीड हिम फ्रॉम दैट एन्चांटमेंट। तो वो जो जादू मंत्र से ग्लक ने उसको फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। द गोल्डन ड्वार्फ वेंट ऑन टू से दैट ही हैड सीन हाउ काइंड ग्लक वॉज एंड हाउ विकेड एंड क्रूल हिज ब्रदर्स वेर। वो गोल्डन आदमी ने बोला कि मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ आप कितने अच्छे हो और आपके भाई लोग कितने विकेड है, क्रूल है। देन ही टोल्ड ग्लक अ सीक्रेट। फिर उसने ग्लक के पास एक सीक्रेट बोला। इफ एनीवन पोर्ड 3 ड्रॉप्स ऑफ होली वाटर इनटू द रिवर वेर इट स्टार्टेड ऑन द माउंटेन टॉप। हमने ये पहले ही पढ़ा था कि एकदम माउंटेन टॉप से रिवर आता है जो सनलाइट की वजह से गोल्डन शाइन करता है, इसीलिए वो उसका रिवर का नाम क्या था, गोल्डन रिवर। द रिवर वुड टर्न टू गोल्ड फॉर दैट पर्सन। अ पर्सन कुड ट्राई दिस ओनली वंस एंड इफ एनी वन पुट अनहोली वाटर इन द रिवर ही वुड बी टर्न्ड इन टू अ ब्लैक स्टोन। सो सेइंग द ड्वार्फ जम्प बैक इन टू द फर्नेस एंड डिसअपियर। तो उसने बोला कि वो जो माउंटेन टॉप के ऊपर से अगर आपने 3 बूंद अच्छा पानी डाला, होली वाटर, तो वो माउंटेन टॉप का वो जो पानी है, रिवर है, पूरा गोल्ड हो जाएगा। और जो कोई पर्सन गंदा अच्छा से डालेगा नहीं या अनहोली वाटर डालेगा, जो अच्छा पानी नहीं है, तो वो खुद ब्लैक स्टोन बन जाएगा। सो व्हेन ग्लक टोल्ड दिस टू हिज ब्रदर्स दे डिड नॉट बिलीव हिम एट फर्स्ट एंड बीट हिम। क्या हुआ, जब ग्लक ने अपने भाइयों को बोला तो उन लोग ने तो विश्वास ही नहीं किया एंड उसको मारने लगे। बट ग्लक स्टक टू हिज स्टोरी। वो बोला नहीं यही है, ऐसा ही करना है। सो एट लास्ट दे बिलीव्ड हिम एंड बिगैन टू फाइट ओवर हु शुड हैव द फर्स्ट चांस टू गो टू द रिवर। तो फिर वापस उनमें झगड़ा हो गया वो 2 भाइयों में, ग्लक हंस एंड स्वार्ट्स में, कौन जाएगा कौन जाएगा। दे फॉट सो मच दैट द पुलिस केम टू सी वॉट हैड हैपेंड। Hans ran away when the police came, but Swartz was caught and put in prison. 2 भाइयों में इतना झगड़ा हुआ that the police came in and Hans ran away, but Swartz was caught by the police and he was put up into the jail. Hans was happy that Swartz was in prison. The very next morning, he went to the church, stole, churaya, some holy water and set off for the mountain. रूल क्या था कि होली वाटर डालना है अच्छे से, अच्छा कोई ऐसे ही चुरा के या किसी को मार पिटाई करके नहीं। हंस ने क्या किया, इमीडिएटली जाके होली वाटर ले आया। इट वॉज नॉट ईजी टू क्लाइंब द माउंटेन, ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी। माउंटेन चढ़ना आसान नहीं था, बहुत टायर्ड हो गया, प्यासा था। Soon Hans thought he would drink some of the holy water himself. फिर उसने सोचा ये जो पानी है वो मैं थोड़ा पी लेता हूँ। Just as Hans raised the flask of water to his lips, he saw a little puppy on the rock. See here in this picture it is clearly shown. When he is trying to go up, he saw a little puppy. It looked as if it was dying of thirst. Hans only pushed the animal away with his foot, drank some water himself and passed on. तो विकेट ही है इन लोग, इसने क्या किया, पानी तो दिया नहीं, लात मार दिया, खुद पानी पिया और आगे आगे चला। द क्लाइंब नाउ बिकेम मोर डिफिकल्ट. हैंस फेल्ट
thirsty again. वो वापस चढ़ने लगा तो और डिफ़िकल्ट हो गया, उसको वापस प्यास लगा. He was going to drink some more of the water when he saw a little child on the rock ahead of him. The child was lying lifeless. मतलब वापस जब उसको प्यास लगा, पानी मुंह में रखने ही वाला था, तब उसने एक बेहोश बच्चे को देखा, प्यास से मर रहा था. His lips parched and burning. Lips dry हो गए थे और जल रहे थे. समर्स में अगर हमने पानी प्रॉपरली पिया नहीं, ड्यू टू हीट, what will happen? Our lips will get dried. Ignoring the child, Hans drank some more water himself and passed on. So he neither helped the dog, puppy, nor did he help the boy, child. The climb had now become very, very difficult. अभी और भी difficult होते गए. Somehow Hans reached the top of the mountain from where the golden river sprang. Faint cry fell on his ears. Then he saw a weak old man stretched on the rock. Water, the man said. Water, I am dying. माउंटेन कैसे तो कैसे ऊपर चढ़ गया वो, और ऊपर जब जा रहा था उसने देखा कि एक आदमी मरने जैसे हो रहा है, क्योंकि उतना प्यासा है. वो बोल रहा है पानी पानी. जस्ट इमेजिन चिल्ड्रेन, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं एंड इफ़ वी सी समवन आस्किंग फॉर वाटर, यस वी विल गिव हिम वाटर, राइट? बट दे वर विकेड, सो इसने कुछ दिया नहीं. आई हैड नो वाटर फॉर यू, रिप्लाइड हंस. He jumped over the old man's body and ran to the river. The sun was about to set. The river shone golden in the light of the setting sun. Hans threw the flask of holy water into the river, but alas, the river did not turn to gold. Instead, there was only a black stone where Hans stood. But ये अच्छा पानी उसने प्रॉपरली लिया नहीं था, चोरी किया था और किसी को हेल्प भी नहीं किया, इसीलिए वो पत्थर जैसा बन गया. When Swartz returned from prison, he took some of the Gluck's money and bought holy water from a bad priest and set out for the golden river. वापस इसने यही गलती किया, एक तो पहले चोरी किया पैसे, फिर होली वाटर भी किसी ऐसे प्रीस्ट से लिया, ऐसे पंडित जी से लिया जो प्रॉपर नहीं है. Yes, and वो चला. So while climbing the mountain, Swartz too saw the fair child dying of thirst and passed on without giving him water. So same, he also did the same thing, जैसे हंस ने किया. Yes, he also saw the child, but he too did give the milk water. As he had climbed a little higher, he saw his own brother Hans stretched on a rock asking for water. Oh, जैसे और ऊपर गया तो वापस उसने किसको देखा? उसके खुद के भाई को, जो पानी के लिए तरस रहा है. बट इसने क्या किया? बट द विकेड स्वार्ड्स ओनली लाफ्ड अलाउड एंड वेंट ऑन विदाउट गिविंग हिम एनी वाटर. देखो ये कितना गंदा है, अपना भाई को भी इसने पानी नहीं दिया. अलास, व्हेन ही कास्ट द फ्लास्क इनटू द स्ट्रीम, ही टू वॉज टर्न्ड टू स्टोन. ऑफकोर्स प्रॉपरली किया नहीं था तो इसीलिए वो भी स्टोन जैसा बन गया. ग्लक वेटेड एंड वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स बट डिड नॉट रिटर्न. ये छोटा था तो ये रुका था, अपना भाई आएगा अपना भाई आएगा, बट कोई नहीं आया. सो इसने सोचा कि चलो मैं खुद ही जाता हूँ. एट लास्ट ही डिसाइडेड टू विजिट द गोल्डन रिवर हिमसेल्फ. ही वेंट टू अ गुड प्रीस्ट हु विलिंगली गेव हिम सम होली वाटर. विलिंगली मतलब वो खुद से ही चाह के उसने होली वाटर दिया. होली मीन्स प्योर. ग्लक वॉज यंग एंड स्मॉल एंड ही टू फाउंड द क्लाइंब वेरी डिफिकल्ट. वो जो चढ़ाव था माउंटेन का वो तो छोटा था, फिर भी उसको, ग्लक छोटा था फिर भी वो माउंटेन का चढ़ाव बहुत डिफ़िकल्ट लगा. आफ्टर ही हैड क्लाइम्ड फॉर एन आवर और सो ही बिकेम वेरी थर्स्टी. उसको भी प्यास लगने लगा. ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक सम वाटर व्हेन लाइक हिज ब्रदर्स ही सॉ एन ओल्ड मैन. भाई लोग के जैसे ही इसने भी एक ओल्ड मैन को देखा जिसको पानी चाहिए था. The old man walked towards Gluck leaning on a staff and asked him for water. Staff is a stick, long stick. Gluck saw that old man was pale, tired and thirsty. उसने देखा कि ओ ये तो old man बहुत tired है, weak है, thirsty है. So he gave him the bottle of water. The old man drank up nearly 2/3 of the water. Then he returned the bottle and wished Gluck well. पूरा बॉटल का पूरा आधा से भी ज़्यादा पानी वो पी के गया. 2/3 of the water was drank.
ग्लक डिड नॉट हैव एनी वाटर हिमसेल्फ, उसको भी प्यास लगा था बट उसने पिया नहीं कुछ. बट एज ही वेंट ऑन हिज पाथ बिकेम ईजियर, उसने तो हेल्प किया इसीलिए उसका जो रास्ता है आगे का वो थोड़ा ईजी हो गया. आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही बिकेम थर्स्टी ही सॉ द स्मॉल चाइल्ड. ग्लक वॉज सॉरी फॉर हिम एंड गेव हिम सम वाटर. वापस वो जब आगे चढ़ा तो उसको एक छोटा बच्चा दिखा, उसको बहुत प्यास लग रहा था तो उसको भी पानी दिया. सो द चाइल्ड बिगैन टू स्माइल, गॉट अप एंड रैन डाउन द हिल. बहुत खुश हो गया, उसको ताकत मिल गया और वो हिल से उतर के आ गया. नाउ ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर लेफ्ट इन द बॉटल. अभी थोड़ा ही बाकी है और बोला गया था वो बियर्डेड फेस मैन ने कि 3 ड्रॉप्स अगर रिवर में डालेगा तो वो गोल्डन रिवर हो जाएगा. When Gluck came near to the mountain top, he was very thirsty himself. Just then he saw the poor little pup that was dying of thirst. I must help it now, thought Gluck. Otherwise, it may be too late. चला ओ ये छोटा पपी को तो मेरे को हेल्प करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये मर सकता है. So he poured the remaining drops into the little dog's mouth. जो कोई थोड़ा बहुत बूंद था वो सब वो पपी के मुंह पे डाल दिया. The dog sprang up and in his place stood the king of the golden river. और डॉग के बदले में डॉग का वेश लिया हुआ गोल्डन रिवर का किंग बाहर आए. He was very pleased with Gluck. Gluck को देखिए वो बहुत खुश हो गए कि वाओ he is such a helping man, helping boy, is such kind man. The king put in Gluck's bottle some dewdrops from the petals of a lily. ये जो लिली प्लांट है, लिली फ्लावर, उसका जो ड्रू ड्रॉप्स है उसमें जो छोटे छोटे पानी के बूंदे हैं उससे बॉटल में पानी भर दिया. देन ही टोल्ड ग्लक टू कास्ट इट इनटू द लीपिंग वाटर. और उसने बोला ओके ये जो पानी है वो आप रिवर में डाल दो. ग्लक डिड सो बट द रिवर डिड नॉट टर्न टू गोल्ड. वो जो रिवर गोल्ड होने वाला था वो हुआ नहीं. हावेवर बट क्या हुआ, it changed its course and began to flow through the treasure valley, making it rich and fertile once again. But वो जो गोल्डन रिवर है, वो जो रिवर है वो ट्रेजर वैली से पास होने लगा. इसके कारण क्या हो गया, ट्रेजर वैली वापस फर्टाइल हो गया. यस और अच्छा हो गया, वापस उसमें सब आने लग गए. ट्रेजर वैली, वो वैली को ट्रेजर वैली क्यों बोलते थे, बिकॉज इट हैड एवरीथिंग. Purple grapes, yes, high hay. Gluck lived in the valley, helping the poor and the needy. Gluck तो बहुत अच्छा था, वो वैली में काम करते करते लोगों को हेल्प करते रहा, जिसको भी बहुत प्रॉब्लम है उनको हेल्प किया. His barns were always full of corn and he never lacked for money. और उसके जो फार्म्स है उसमें हमेशा कॉर्न्स आते थे और वो हमेशा अच्छा ही रहने लगा. जिसको भी पैसे चाहिए था वो देता था, उसके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रही. सो फ्रॉम दिस चैप्टर वी कैन अंडरस्टैंड दैट वील गेट एवरीथिंग इफ़ वी वर्क हार्ड, इफ़ वी आर काइंड एंड इफ़ वी हेल्प अदर्स. एंड ऑलरेडी सब है, एंड इफ़ आवर बिहेवियर इज़ बैड we don't know, in no time we can lose everything. So we should be always helpful, kind with others. Yes children, so this chapter is taken from, that is simplified from The King of the Golden River by John Ruskin. John Ruskin ने ये वाला बुक लिखा है The King of the Golden River. इसमें से थोड़ा सिंपल फॉर्म्स में, सिंपल वर्ड्स में ये चैप्टर लिखा है. Yes children, I hope this chapter is clear. Okay, bye.